नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबर। नवजोत सिद्धू को पुलिस के खिलाफ व्यंग्य कसने पर डीएसपी दिलशेर चंदेल ने भेजा लीगल नोटिस। सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो 22 दिन बाद दर्ज होगी क्रिमिनल कंप्लेंट। आम आदमी पार्टी व कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए पार्षदों को खरीदने के आरोप। और पंचकुला में कालका की एसडीएम ममता शर्मा से युवकों ने की बदसलूकी, मामला हुआ दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने पुलिस के खिलाफ व्यंग्यात्मक बयानबाजी की थी, जो कि ट्विटर पर काफी चर्चित हुई थी। जिसके बाद डीएसपी दिलशेर चंदेल, जो कि चंडीगढ़ में तैनात हैं, उन्होंने सिद्धू से सार्वजनिक रूप पर माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन सिद्धू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद अब उन्हें दिलशेर चंदेल की ओर से लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर 22 दिन के भीतर उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी ना मांगी तो वह क्रिमिनल कंप्लेंट दायर करेंगे। आपको बता दें कि नवजोत सिद्धू ने पुलिस वालों की पैंट गीली होने की बात कही थी। कांग्रेस ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਚੰਦੇਲ ਜੀ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਹੇ ਸੀ ਚੰਦੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਾਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੀ ਡਿਫੇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, 21 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਫੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਅਪੋਲੋਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ ਸਿਵਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਨਿਟਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਟਫ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਮੋਨਿਟਰੀ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 499 500 ਆਈਪੀਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम में चुनावों के बाद मिली शिकस्त को जीत में बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त पार्षदों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें 50 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक की ऑफर की जा रही है। यह आरोप उन्होंने चंडीगढ़ में बुलाए पत्रकार सम्मेलन में लगाए। जब से नतीजे आए हैं तब से बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए बीजेपी के लोगों ने सरेआम खरीद फिरोख्त शुरू कर दी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, हमारे जो काउंसलर जीते हैं इलेक्शंस, कल के नतीजों में हमारे जो 14 काउंसलर जीते हैं, उनसे संपर्क करके, उनके घर जाकर, उन्हें फोन कर कर उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पे उन्हें कहा जा रहा है कि आप रकम बताइए, जो रकम आपको चाहिए वो रकम हम आपको देंगे, उतना पैसा देंगे, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाइए। हमारे तीन सिटिंग काउंसलर्स को कल लाखों रुपए के ऑफर्स दिए गए, 2 को 50 लाख रुपए का और 1 को 75 लाख रुपए का ऑफर
बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के सीनियर लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। कल शाम को दिया गया और उन्हें अपनी पार्टी छोड़कर, आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया। पहले तो मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लोग इस मिट्टी के नहीं बने जो तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे डराने धमकाने से डर जाएं। और दूसरी चीज, एहतियात बरतते हुए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आम आदमी पार्टी अपने सारे सिटिंग काउंसलर्स के घरों में सीक्रेट कैमरे लगवा रही है और साथ ही साथ सारे काउंसलर्स को यह हिदायत दे दी गई है कि आप सब अपना फोन रिकॉर्डिंग पे डाल दें। अगर कोई भी बीजेपी आदमी, कोई भी बीजेपी का नेता अगर हमारे सिटिंग काउंसलर के घर जाने की कोशिश करता है, उनसे मिलने की कोशिश करता है, तो वो हमारे सीक्रेट कैमरे जो काउंसलर्स के घर के बाहर हम लगाने जा रहे हैं उसमें कैद हो जाएगा। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा है कि भाजपा और आपने करोड़ों रुपए खर्च कर लड़ा था चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव, लेकिन हमारी ओर से इस तरह का प्रलोभन ना तो दिया गया, ना ही भारी भरकम खर्च किया गया, बल्कि अपने वायदों को निभाने का वायदा कर ही लोगों से वोट मांगी थी और लोगों से उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उन्होंने कहा कि वे साफ सुथरी छवि के तहत मैदान में उतरे थे और लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने भी आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नवनियुक्त पार्षदों को फोन कर रही है और उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही है। पार्षदों को विभिन्न तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन सुभाष चावला ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है। देखिए, चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है। वो इसलिए है कि जो मैंडेट मिला है वो हमारे पक्ष में है। सबसे ज़्यादा वोट शेयर हमारा है। मैंने बता दिया आपको कि कांग्रेस को मिला है 1,14,000 वोट, 1,14,492 942। भारतीय जनता पार्टी को मिला है 1,13,045 और जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है उसको मिला है 1,04,071 वोट। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चंडीगढ़ की जनता ने हमारे पक्ष में मैंडेट दिया है। हमारी पार्टी जीती है, हम 4 से 8 हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जब उनके पास 26 इलेक्शन लड़े थे तो उनको 20 सीटें मिली थी। अब वो उन्होंने 35 में लड़ा है तो उनको 27 मिलनी चाहिए थी। उस हिसाब से वो बिल्कुल 12 पे गिरे हैं। तो एक तरह से चंडीगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया। सर, मेरा एक सवाल है। हमारा एक स्वाभाविक दावा है कि हम मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे और हम सारे काउंसलर जो चुन के आए उनको कहेंगे कि आप चंडीगढ़ की जनता के मैंडेट के ऑनर करिए और हमारी पार्टी के लिए मतदान करिए। दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं, इनका दोनों का इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक रिकॉर्ड इतिहास है। उसने तो चुनी हुई कई सरकारें करा दी, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, ऐसे सब जगह करते रहे और ये अटेम्प्ट चंडीगढ़ में भी कर सकते हैं, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक हमारे कुछ पार्षदों को कुछ लोगों ने ये कहा के फ़ोन किया है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमारे पार्षदों ने बिल्कुल कहा कि जी आप इस काम के लिए हम आपसे बात भी नहीं करना चाहते। तो मैं ये एलिगेशन तो नहीं लगाऊंगा कि हमें कोई पैसे की ऑफर हुई है या अभी तक जब मिले ही नहीं तो ऑफर वाली बात नहीं मानते। लेकिन दूसरी तरफ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज देखी है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हमारे आदमियों को 50-50 लाख रुपए दिए हैं और मैं तो इसको कह सकता हूँ चोर मचाए शोर वाली बात है। हो सकता है ये ऑफर आम आदमी पार्टी बीजेपी के पार्षदों को कर रही है। तो इसलिए दोनों पार्टियों में हम एतबार नहीं करते, दोनों का इतिहास है। हरियाणा की मतलौड़ अनाज मंडी के एक आढ़ती से 92 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने अनिल विज से भी की थी। गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी को कार्रवाई करने के लिए कहा था। काफी समय पहले पुलिस ने एफआईआर तो लॉन्च की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब पीड़ित ने चंडीगढ़ में एक पत्रकार सम्मेलन में यह आरोप लगाए कि पुलिस और प्रशासन उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही। मैंने लेखराज एंड सन्स फर्म को अपनी दुकान से धान खरीद के दिया था, अपना भी दिया था, अपने मार्केट से भी लेके दिया था।
उन्होंने कहा था जी हम धान बेच के आपको इसका चावल बना के देंगे या इसको बाजार में बेचेंगे, इसका मार्जिन देंगे और उसके पैसे देंगे। ना तो उन्होंने मेरे को आज तक मेरे चावल दिया, ना मेरे पैसे दिए जी। मैं 1 साल से धक्के परेशान हूँ जी, धक्के खा रहा हूँ। मैं गृह मंत्री श्री अनिल विज के पास गया, उनको एप्लीकेशन दी मैंने दोषियों के खिलाफ। उन्होंने मेरी जांच डीजीपी क्राइम ब्रांच को सौंप दी जी। डीजीपी क्राइम ब्रांच ने, पुलिस हेडक्वार्टर ने दोषी गणों के खिलाफ रिकमेंडेशन करके भेज दिया भाई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन पानीपत पुलिस मेरा FIR दर्ज नहीं कर रही। 20 दिनों से SP साहब के पास मेरी फाइल रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये मेरे पास RTI के सबूत है जी, जो IGY पूर्ण कुमार ने मेरी इंक्वायरी करी थी, कमलदीप गोयल SP यमुनानगर ने मेरी इंक्वायरी करी थी, प्रमोद कुमार DSP ने यमुनानगर मेरी इंक्वायरी करी थी, लॉ एंड ऑर्डर ADGP ने मेरी इंक्वायरी करी थी, SP क्राइम ब्रांच ने मेरी इंक्वायरी करी थी, DGP क्राइम ब्रांच ने मेरी इंक्वायरी करके रिकमेंडेशन करके भेज दिया भाई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं 20 दिनों से फाइल मेरी पानीपत रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये RTI की है जी मेरे पास। जिन जिन अफसरों ने मेरी इंक्वायरी करी सब ने दोषियों के खिलाफ रिकमेंडेशन करके दे दिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस ऊपर मैं क्या लगाऊं? मैं गृह मंत्री जी के पास होया के सामने पेश होया, गृह मंत्री जी ने मेरे सामने SP साहब को कहा भाई मेरे टेलीफोन करने के बाद भी तो मैं FIR दर्ज नहीं कर रहे, तो मैं इसका क्या मतलब समझू? बताओ जी मैं किधर जाऊं, क्या करूं? मैंने बैंक के पैसे देने हैं, मंडी के पैसे देने हैं, मंडी वाले मेरी दुकान पे ताला लगाने के लिए तैयार हैं, बैंक के ब्याज भरने के मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, गृह मंत्री श्री अनिल विज जी से, भाई ये किसानी 33 सरकार है, मैं किसान का बेटा हूं, आप मेरी FIR दर्ज करी जाए और मेरी मदद करी जाए। आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी गृह मंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाई आप मेरी मदद करें, मेरी FIR दर्ज कराइए। पुराना पंचकुला की लाइट पॉइंट पर कालका की SDM ममता शर्मा के साथ कुछ युवकों ने बदसलूकी की। दरअसल उनकी गाड़ी का पहले शीशा तोड़ दिया गया, बाद में कार के चालक के साथ उलझ गए, गाली गलौज की। जब बीच बचाव करने ममता शर्मा बाहर निकली तो उनके साथ भी बदतमीजी की। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन पुलिस के साथ भी इन युवकों ने बदतमीजी की। इसके बाद यहां पहुंचे थाना प्रभारी ने ममता शर्मा की शिकायत पर इन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पंचकुला के ओल्ड पंचकुला ट्रैफिक लाइट पर 2 युवकों द्वारा कालका के SDM की गाड़ी का साइड मिरर तोड़ने और SDM की पुलिस सुरक्षा कर्मी से बदसलूकी व हंगामा करने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी उन लड़कों ने बहस शुरू कर दी। इसकी सूचना पाकर सेक्टर 7 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को थाने ले गए। SDM कालका ममता शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सर हम कालका से आ रहे थे, हाँ जी, तो इनकी गाड़ी ने हमारे को कितनी बुरी तरह से रॉन्ग साइड से ओवरटेक किया, हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होते होते बची। अच्छा। उसके बाद में जब हम आगे रेड लाइट के पास में ट्रैफिक ज़्यादा था तो मैं इसके उतर के मैडम ने कहा भी ये कैसे बदतमीजी से चला रहे हैं, ये एक्सीडेंट करते हैं, इनसे पूछो। जब मैं उतर के गया मैंने इनसे पूछा ना भी क्या आप बता रही है, मैं गाड़ी साइड में लगाऊँ। इन्होंने गाड़ी साइड में लगाने की बजाय मेरी साइड में चढ़ाने की कोशिश करके और ये भगा ले गए गाड़ी। आगे रेड लाइट थी, रेड लाइट पे गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुक गई तो मैं कहा भाई अब कहाँ जाएगा भाग के। तो इतनी देर में जो दूसरा बंदा जो गाड़ी के साथ जो ड्राइवर के साथ जो दूसरा बंदा था वो उतर के आया, नोला तूने मेरे को थप्पड़ कैसे मारा, तूने मेरे को हाथ कैसे लगा दिया, तूने इसको कैसे मार दो। जबकि मैंने उसको, मैं नेम कसम खाता हूँ, बेल्ट पे हाथ रखता हूँ, रोजी रोटी से बढ़ के कुछ नहीं, और मेरे 2 बच्चे मैं कसम खाता हूँ मैंने इसको हाथ भी टच भी नहीं किया। वहाँ पे CCTV कैमरा लगा भी हुआ है। नोला भी तूने मेरे को हाथ कैसे लगाया यार, ये कैसे किया, वो कैसे किया। बावजूद इसके इन्होंने जो है मैडम की गाड़ी को ये ड्राइवर साइड में लगा रहा था, तो ये कह रहा है भाई भाग कहाँ रहे हो, मेरे पापा ADC हैं और मैं जो है तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, DCP साहब यहीं पे बुलवा दूंगा मैं। और इन्होंने जो है गाड़ी का शीशा खींचा और ये ज़बरदस्ती गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। उसके बाद में मैंने 112 पे कॉल करके PCR आई थी, ये जनाब आए थे ASI PCR इनको यहाँ थाने में लेके आए। थाने में लाने के बावजूद भी इन्होंने जो है बदतमीजी करी और ये सब इंस्पेक्टर साहब हैं, इनके साथ में इनकी माताजी ने भी बदतमीजी करी है। दरअसल कालका SDM ममता शर्मा सरकारी गाड़ी से पंचकुला सेक्टर 1 DC ऑफिस आ रही थी, तब वो पुराना
पंचकूला ट्रैफिक लाइट के पास पहुंची तो पीछे से तेज रफ्तार से आ रही कार उनकी गाड़ी से टकराने से बाल बाल बची। उसी दौरान आगे ट्रैफिक लाइट होने के कारण गाड़ी रुक गई, जिसके बाद एसडीएम का पीएसओ उतरकर कार सवारों के पास गया तो दोनों युवकों ने पीएसओ के साथ बदसलूकी शुरू कर दी और एक लड़के ने कार से उतरकर एसडीएम की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अभी एसडीएम कालका से हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है कि दो लड़के ड्रिंक थे, अपनी गाड़ी से रसली ड्राइविंग करते हुए उनकी गाड़ी को हिट करके निकले। जब उनके पीएसओ ने ओल्ड पंचकूला चौक पे उनको रोक के कारण पूछा तो उन्होंने उनके पीएसओ के साथ भी मिसबिहेव किया और एसडीएम मैम के साथ भी मिसबिहेव किया, जिस संबंध में उन्होंने अभी दरख्वास्त दी है। उस पर अभी उनका मेडिकल कराने के लिए गए हुए हैं पुलिस हमारी, और इस पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। अभी दरख्वास्त प्राप्त हुई है, दरख्वास्त के साथ से जो भी अपराध बनेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हाथापाई पुलिस मुलाजिमों के साथ हुई है। डायल 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर सेक्टर 7 थाने ले आई, जिसके बाद पुलिस ने एसडीएम की शिकायत पर दोनों पर मामला दर्ज कर उनका मेडिकल करवाया और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। जब किसी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। 22 नवंबर को चंडीगढ़ में हरियाणा परिवहन विभाग के निदेशक वीरेंद्र दहिया ने एससी एम्प्लॉय संघर्ष समिति के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से जाति सूचक शब्दों के मार्फत परेशान किया था और उन पर अपमानित करने की टिप्पणी भी की थी। शिकायत केंद्र तक पहुंची थी, जिसकी जांच का जिम्मा परिवहन विभाग की प्रधान सचिव कलाचंद्रन को सौंपा गया था। ट्रांसपोर्ट एससी एम्प्लॉय संघर्ष समिति के सदस्यों ने इस संबंध में चंडीगढ़ आकर अपने बयान भी दर्ज करवा दिए हैं और पुलिस स्टेशन सेक्टर 3 में भी एक शिकायत देकर निदेशक वीरेंद्र दहिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल में समिति के अध्यक्ष मनोज चाहल, बलवंत सिंह, संदीप बौद्ध, विजय और अनिल शामिल हैं। मैं मनोज चहल, राज्य प्रधान रोडवेज एससी एम्प्लॉय संघर्ष समिति ऑफ हरियाणा। सर, आज हमारी विभाग की जो प्रधान सचिव है मैडम कला रामचंद्रन जी, उनके साथ आज हमारी मीटिंग थी। उन्होंने जो 22 नवंबर को जो प्रकरण हुआ था, डीजी महोदय ने जो हमें मीटिंग के अंदर जातीय तौर पर अपमानित किया और हमारा बहिष्कार किया, तो उसके एवज में आज माननीय आशीष महोदय ने हमें बुलाया था अपना पक्ष रखने के लिए। आज मेरे साथ प्रधान हमारे महासचिव श्री संदीप कुमार जी और हम दो व्यक्ति आज मैडम से मिले और हमने अपनी बात रखी। हमने मैडम को अवगत कराया कि उस दिन आप मुख्यतः आपकी उपस्थिति, गरिमामयी उपस्थिति मीटिंग में थी। आपने सारा वाकया अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। वही आप भली भांति इस घटना से परिचित हैं, फिर भी हम बात रखना चाहते हैं। जैसा कि मैडम ने पूछा कि भाई आपके साथ क्या जातीय व्यवहार हुआ, तो हमने बताया कि मैडम जब सभी यूनियनों को माननीय निदेशक महोदय ने सुना, मंत्री महोदय ने सुना, तो हमने दो बार रिक्वेस्ट की हमें भाई हम अपनी यूनियन के बैनर तले अपनी डिमांड रखना चाहते हैं, लेकिन हमें बार अनसुना किया गया। और इसके बाद फिर हमने हाथ जोड़ करके माननीय मंत्री महोदय को रिक्वेस्ट की, अपील की कि भाई हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं। भाई आप तमाम यूनियनों की वार्ता सुन चुके हैं, उनकी मांगें सुन चुके हैं। तो इस पर मंत्री महोदय ने जब हमें अनुमति दी और जब मांग पत्र को हमने आशीष मैडम को सौंप करके अपनी बात रखनी चाहिए, भाई हमारे जो विभाग में, परिवहन विभाग में जो परिचालक से सब इंस्पेक्टर के पदों पर पदोन्नति की गई, उसमें हमारे लगभग 60 कर्मचारियों को 2-3 पदोन्नति लिस्टों में, सूचियों में पदोन्नति के लाभ से वंचित रखा गया। हमारा पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इसके संदर्भ में जब हमने बात रखनी चाहिए तो माननीय डीजी साहब ने तुरंत ही भड़क कर कहा कि हम किसी जातिवादी यूनियन की बात नहीं सुनना चाहते और अधिकारियों को कहा कि भाई आपको बुलाया किसने था, भाई आगे से इनको बुलाना नहीं, इन एससी वालों का पेट नहीं भरता। जब मैंने मैडम को ये कहा तो मैडम कहने लगी चलो ठीक। और अब कोरोना अपडेट। देश भर में नए कोरोना वेरिएंट के मरीजों का लगातार आना बरकरार है। चंडीगढ़ और मोहाली, पंचकुला भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। हालांकि पंचकुला में तो सख्ती बरत दी गई है। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि रात का कर्फ्यू 1 जनवरी से लग जाएगा।
2 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी यह आदेश जारी किए हैं कि जिन व्यक्तियों को दोनों डोज नहीं लगी होंगी वो सरकारी कार्यालयों में, मॉल्स में, थिएटर में और होटलों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। गुजरे 24 घंटों में भी ट्राई सिटी के 20 से अधिक मरीज सामने आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 11, मोहाली में 5 और पंचकुला में 8 नए मरीज शामिल हैं। आप सभी से एक दफा फिर से हमारी वही अपील कि कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क पहनें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खुद भी बचें और अपने आसपास रहने वालों को भी सुरक्षित रखें। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम है। आने वाले 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में गिरावट आना लाजमी है। रात को शीतलहर चलने की भी संभावना जताई गई। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश चांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।